And good evening to all. Welcome to our series Reflections marking 101 years of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji. Today we have with us Tabla Maestro Pandit Charanjit Chaturlal, who will be sharing his memories of Pandit ji. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Pandit Charanjit Chaturlal. नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस सब आपका आशीर्वाद है. नाइस टू सी यू अंकल, and it will be a very interesting conversation when we continue with Shri Gaurav Majumdar. जी जी। रंजित भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार गौरव, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? नाइस टू सी यू। बस फर्स्ट क्लास। नवरुण नमस्कार। दादा नमस्कार. What a pleasure. We are on our 88th episode. Yeah. Oh, is it? Yes. It's been very nice. A wonderful journey, speaking to some extremely wonderful people, sharing their memories on Guruji. So much we have learned in this past 1.5 years of the pandemic. And every episode is an eye-opener, is an inspiration, and it gives us fresh input, and we look at Pandit Ravi Shankar ji with a new light, with some added colors, added stories. दादा हम आज का शुरू करेंगे आपके साथ एपिसोड. We are very 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 honored and happy that you are there to represent your father, the great Pandit Chaturlal ji, who along with Guruji was one of the first people who created a storm in the field of classical music, both in India and abroad. आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? Where do you want to start today's episode? I think so. It would be nice if I start this speaking. First of all, I would like to say that I'm really honored that आप लोगों ने मुझे याद किया गुरुजी के 101 बर्थडे पे, and it gives me a lot of happiness. And the first thing which I would like to start the thing with, my first meeting with Guruji, Pandit Ravi Shankar ji. It was somewhere in mid-80s, if I remember, 82, maybe 82, at Lodi State, 95 Lodi State. Can you hear me, Gaurav? Absolutely, very clearly. I can hear you very clearly. Okay. So, my first meeting, I still remember so nicely. He was so sweet. The first time I met him, he kissed me on my forehead, and I took his blessings, and he hugged me, and he told me that you look like your father. My smile, he said, and my father used to eat like this on his lips. So I don't know. I also used to do that, and he made me realize that कि तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही होठ काटते थे. So that was my first meeting, and after that तो कई दफा लोधी स्टेट में ही उनके साथ सौभाग्य मिला, उनके साथ बैठने का, थोड़ा बहुत उनके साथ ठेका लगाने का. Gaurav, I think you were also there that time when I used to come. Definitely, and I remember with a lot of pleasure those days in Lodi Estate. बहुत अच्छा दादा, उस पे हम थोड़ा बाद में आते हैं. तो we begin today's. आप थोड़ा अपना आपका जो फैमिली है, आपका जो लीनिएज है, आपका जो कनेक्शन है राजस्थान के साथ, आपका घराना, आपका जो उसके बारे में पहले हम लोग को थोड़ा बताएं. आपके घर में कौन कौन कैसे गाना बजाना, तबला कैसे आया आपके घर में? देखिए, मेरे जो दादाजी थे जी, वो इसराज बजाया करते थे जी. शौकिया इसराज बजाते थे.
वी हैड अ स्मॉल फार्म जहाँ पे हम लोग 60 बीघा जमीन थी, उस जमाने में थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती थी, तो उसमें खेती वेती भी करते थे। और दैट इज हाउ, एंड माय ग्रैंडफादर, उनका बड़ा मन था कि बच्चे संगीत सीखें। तो क्योंकि वो भी खुद भी इस राज बजाया करते थे और बहुत मीठा हाथ था उनका, चाचा जी का हाथ जैसा आपको सुनाई दे, याद हो तो, जी जी पंडित राम नारायण जी। जी, एकदम तो एकदम। उन्होंने पिताजी को कहा कि बेटा तुम तबला शुरू करो। तो दैट इज हाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग तबला। तो वहाँ पे उस्ताद साहब थे, उस्ताद हफीज मियाँ, उदयपुर के बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे। उनसे उन्होंने शुरुआत की और काफ़ी टाइम तक उनसे सीखा। एंड देन ही केम टू दिल्ली and got all India Radio. Me got started with the as a tabla player job in the All India Radio, and there where he met Pandit Ravi Shankar ji, Guru ji. With due respect, we always say Guru ji because he was indeed a guru and great legend. So that is how my father got into music, and पंडित जी के साथ तो फिर played with so many concerts, so many years he spent it with him. तो ये छोटा सा एक ब्रीफ था कि that is how that music came in the family. In fact, family में तो था ही music, but that is how my father started tabla, playing tabla. 40s 50s का जो दौर था जी दादा, that was the जी, time both Guruji and आपके पिताजी, they were in the making, they were struggling, they were of course, of course, practicing. of course. तो हमको For उनके स्ट्रगल hours डेज का, together. आपने जरूर अपने माताजी से आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी। हमको थोड़ा वो सब जी दिनों जी, में थोड़ा ले जाइए, क्योंकि हम लोग को सच में जानना है कि एक्चुअली 40s 50s में देखो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। जी, मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था गौरव, जी बट आई स्टिल रिमेम्बर हेली रोड पे पंडित जी रहा करते थे। जी ये अपना मंडी हाउस के पास में। जी जी तो वहां पे ये लोग रात रात भर रियाज करा करते थे, और ऑल इंडिया रेडियो में तो गुरुजी थे ही वहां पे। तो दैट वाज द टाइम व्हेन ईश्वरन जी थे, इफ यू रिमेम्बर ईश्वरन जी, साउथ इंडियन मृदंगस्थी थे, और एक खंजीरा बजाया करते थे। तो उनसे भी इन लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे। और मुझे थोड़ा सा वेगली याद है, सप्रो हाउस में आई वाज वेरी यंग, बट आई रिमेम्बर शायद पहले अलीबर खान साहब ने बजाया था, उसके बाद में गुरुजी ने बजाया। तो वो जब तालियां बजी, पंडित जी आए स्टेज पे तो आई वाज स्मॉल, तो मेरी एकदम आई ऑलमोस्ट हैड स्लेप्ट इन माय ग्रैंडमदर्स लैप। माय ग्रैंडमदर वाज देयर इन दैट कॉन्सर्ट। तो आंखें खुली तो उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, ही केम एंड किस तरह से, मतलब वो दिन कुछ अजीब ही गरीब थे, लोग सुनने वाले भी बहुत अजीब थे। उसके बाद तो फिर मैंने बहुत कॉन्सर्ट सुने अपने ये अपना शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल होया करता था मॉडर्न स्कूल में। दैट वाज क्वाइट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज उसके बाद में बॉम्बे चला गया था मैं, मेरे फादर की डेथ हो गई थी 1965 में, एंड आई वाज 10 इयर्स दैट टाइम। तो इतना बहुत ज्यादा याद नहीं, मगर मम्मी बताया करती थी कि कैसे गुरुजी हमारे घर में साउथ एक्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट 61, तो ये लोग साथ में बैठ के यहाँ पे भी अ, बहुत रियाज व्याज होता था, खाना वाना बनता था। तो एक दिन दोपहर में गुरुजी को पिताजी ने बुलाया लंच के ऊपर। ये दिस इज समथिंग किसी को शायद मालूम नहीं है ये किस्सा, बहुत ही, मतलब मेरी मम्मी ने बताया मुझे। मम्मी किचन में खाना बना रही थी, और ये ड्राइंग रूम और हमारा किचन साथ साथ में ही था। पुराना घर अगर आप लोग ने तो नहीं देखा, तो ड्राइंग रूम के साथ ही किचन होया करता था। तो
गर्मी का दिन था और दोपहर का टाइम। तो गुरुजी ने वहां से आवाज दी, बौदी, मतलब बंगाली में भाभी, बोला भाभी बहुत गर्मी हो रही है, बारिश करवाई जाए। तो मम्मी ने उधर से किचन में से बोला, अरे आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। तो ही प्लेड मल्हार। मम्मी अभी भी, मतलब अब तो नहीं रही मम्मी, मम्मी ने, मतलब दैट फीलिंग which came on her face while narrating that incident, कि what a great musician he was. She told me, Charanjit, you won't believe it, गर्मियों का दिन अच्छी खासी गर्मी पड़ रही, and after some time, and it only rained somewhere near South X, इसी साउथ दिल्ली के अंदर अंदर बारिश हुई थोड़ी सी। यानी वो एकदम अजीब ही हो गया। यानी मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था, सुना था कि भाई ऐसे हो जाता है। एंड दैट वाज द डे व्हेन शी सेड कि वी रियली सॉ इट रेनिंग इन साउथ वेस्ट। तो ये एक बहुत महान कलाकार जो होते हैं, जिनके सच्चे सुर और उनकी जिनकी लगन ऊपर तक पहुंच जाती है, ये वो लोग ही कर सकते हैं। आम कलाकारों के बस का नहीं होता है। वो जो लौ लग जाती है ना जब, और सुरों का जब सच्चापन आ जाता है, तो वो मिरेकल्स तब होते हैं। तो मम्मी ने कहा कि चलिए, बिलीव मी यार, आई सॉ विद माय ओन आईज, आई कांट स्टिल फॉरगेट इट। दैट टाइम आई वाज वेरी बिग, मतलब मैं बॉम्बे से आ गया था, मे बी इट वाज समवेयर नियर 75-80 के बीच की टाइम में। तो ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, मैं मम्मी की, छोटा था, मतलब बड़ा तो था, मगर आई समटाइम ये जो लाड़ में आके, उस टाइम भी मैं उनकी गोदी में सो जाता था। तो दैट टाइम शी टोल्ड मी दिस स्टोरी। और एक दफा उन्होंने उस वक्त ही बताया कि उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर आए हुए थे दिल्ली, उदयपुर से। तो गुरुजी ने पिताजी को कहा कि यार चतुरलाल, मांस बाटी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो माय ग्रैंडफादर कुक्ड फॉर हिम that mass party, and I think he remembered it for many years, and I vaguely remember sometime he mentioned about it। चिन्नमा को शायद कभी बोला हो तो बोला हो। तो these are something which लोगों को पता नहीं है। I think we should share these type of talks, very personal, but people should know। और उन लोगों का साथ में जो उठना बैठना हुआ, वो उस लेवल पे चला गया कि गौरव, बोलना मुश्किल है, पुरानी रिकॉर्डिंग सुन के समझ में आ जाता है कि हाउ मच दे वर इन, मतलब अंदर से आत्मा कैसे जुड़ी हुई थी। उन लोग को अपने आप ही लग जाता था कि अब ये क्या करेंगे, अब मैं, मेरे को क्या करना है एज एन अकम्पनिस्ट। वो किस तरह से उनकी संगत करा करते थे, उसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा पंडित जी के ऊपर, कि ही वॉज अ ट्रेंड सेटर। इन फैक्ट आई शुड मस्ट से दैट, कि एक तबला प्लेयर को उन्होंने, मतलब सारे जितने भी उनके साथ तबला प्लेयर ने जिन्होंने संगत की, उनको इतना अच्छे से प्रेजेंट करना। हमारे जमाने में जैसे अब हम सुनते अपने बुजुर्गों के से कि तबला प्लेयर बस ठेका ही लगा के रह जाता था पूरे प्रोग्राम में, हार्डली कहीं बीच में थोड़ा सा तिरगिट तिरगिट लग जाती थी तो मेन आर्टिस्ट देखता था कि अरे क्या कर रहे हो, यू नो ऐसी। मगर जैसे पंडित जी ने, मतलब आप सब लोग जानते हैं इस चीज को, मैं क्या बोलूं, कितने अच्छे से। और उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ साथ में, मतलब संगत जिसको कहते हैं, संगत करना सिर्फ बैठना ही नहीं है, मतलब संगीत के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ में मिलना। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने सोचा, और हम लोग सब लोग ने सीखा उस जमाने में। आई थिंक दैट क्रेडिट ऑल्सो गोज टू हिम, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि
हिंदुस्तानी संगीत को वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली रिकग्नाइज कराना और इतना रिस्पेक्ट दिलाना, ये पूरा क्रेडिट पंडित जी को जाता है। मतलब वी ऑल मतलब शुड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, कि सारे शास्त्रीय कलाकारों को जो जगह आज मिलती है, विदेशों में लोग याद करते हैं और संगीत को सराहते हैं, आज ये जो बीज डला, अली अकबर खान साहब, पिताजी, पंडित जी, इन तीनों ने मतलब उस जमाने में तो, अब मैं क्या बोलूं कि कितना इन लोग के अंदर इतना मिलाप आर्टिस्टों के अंदर कम देखने को मिलता है, कि एक तबला पेड़ के साथ में कितना प्यार करना। तो ये ही वॉज अ ट्रेंड सेटर फॉर दिस ऑल, मतलब श्योरली। एंड ग्लोबली म्यूजिक को इतना अच्छे से मनाना लोगों को, देखो गाना बजाना तो सभी कर लेते हैं, मगर मनाना कि हमारा संगीत कितना उच्च कोटि का है, उन लोग को इतना नहीं मालूम था उस जमाने में। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का अंदाजा भी नहीं था। तो ये सब चीजें गुरुजी ने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर, और कैसे कैसे प्रोग्राम किए विदेशों में। अ, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब वो सब चीजें एक्चुअली लोगों को पता भी लगना चाहिए कि कैसे छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स कर करके इन्होंने प्रचार किया। इतने बड़े महान कलाकार थे दैट टाइम आल्सो, दे वर ग्रेट म्यूजिशियंस, बट टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वो क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो उसका सब तब उसका फल अब हम लोग, मतलब सारे ही आर्टिस्ट लोग भोग रहे हैं। और सब लोग इस चीज को मानते भी हैं और कहते भी हैं, और कहना भी चाहिए। तो ये चीजें कहना है। और मेरा जो पर्सनल उनके साथ में ताल्लुकात रहा, वो, मैं तो बहुत छोटा था, मगर इतना प्यार और उनके अंदर जो वो एक सच्चापन था ना, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उनकी किताबें जब पढ़ते हैं तो उससे पता लगता है कि हाउ ट्रू, हाउ बोल्डली accepted all those things happened in his life। तो ये हर एक आदमी के बस की नहीं है, ये बहुत महान लोग ही कर सकते हैं। और उसको लिखत में लिखना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये तो एक दफा लिखा गया तो जिंदगी भर रहता है। एक दफा मुझे याद है, ये इंसिडेंस पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मगर फिर भी मैं 95 लेडी स्टेट में गया, तो गुरु जी ने पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा गुरु जी कुछ नहीं करता हूँ, थोड़ी बहुत टीचिंग कर लेता हूँ, छोटे मोटे प्रोग्राम वोग्राम इधर बजा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम रेडियो की नौकरी पकड़ लो। मैंने कहा पंडित जी कौन देगा मुझे नौकरी, और आजकल तो किसी के कहने पे ही कुछ होता है। अरे कैसे कह रहे हो? ही रोट अ लेटर फॉर मी टू द स्टेशन डायरेक्टर और इंडिया रेडियो दैट टाइम। तो मैं लेके चला गया, ऑडिशन ऑडिशन जो भी फॉर्मेलिटीज होनी थी वो हुई। मगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी के बारे में, इसके बारे में कहना भी नहीं चाहूंगा, मगर किसी और को अपॉइंट कर लिया गया मेरी जगह। तो साल गुजर गया, फिर अगले साल मुझे वापस आए। तो ही डिडंट हैड एनी आइडिया कि, थॉट कि भैया कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा। क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं जी कुछ मालूम नहीं नहीं हुआ। अरे ही वाज शॉक्ड। एक दो दिन के बाद में दुबे दुबे जी होया करते थे उनके सेक्रेटरी उस टाइम। उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह गुरुजी ने बुलाया है, 9:30 10 बजे सुबह का टाइम था। तो मैं उनका आदेश
के अनुसार पहुंच गया टाइम से। तो वो 95 में ही उनका जो ड्राइंग रूम था उसके पीछे उनका बेडरूम हुआ करता था। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। उसके पीछे छोटा सा स्टोर होता था। आई थिंक दैट वाज हिज प्रैक्टिस, पर्सनल प्रैक्टिस रूम। जी 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 जी, वो डू पीछे, यू और वो रिमेम्बर कभी भी गौरव? कुछ लोग आते थे, वो उनके साथ वहां अकेले में बैठ के बात करते थे। अच्छा, ओके ओके। तो वो स्टेशन डायरेक्टर ही थे जो आए हुए थे वहां पे। तो गुरुजी ने सितार निकाला हाँ, वो उनका एंड पूजा रूम था, उनका पूजा रूम। पूजा रूम था, छोटा सा था। जी। और मुझे कहा तबला लेके आओ। तो मैं तबला लेके पहुंच गया। मैंने कहा यार अभी सुबह सुबह ही क्या होने वाला है यार। एंड आई डोंट नो व्हाट वाज इन हिज माइंड। उन्होंने 6:30 मात्रा शुरू कर दी। तो मैं भी ईश्वरन जी के पास में जाया करता था बचपन में। तो ये 6:30 सवा पौना का थोड़ा बहुत अंदाज था। तो जैसे गुरु जी ने ताकि दिन करके ऐसे सम पे आने आए, तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ कि यार ये तो कुछ साढ़े का मामला है। तो मैंने पेशकार शुरू किया और जैसे सारे तबला प्लेयर अंदर कैलकुलेशन चालू हो गई, तो 13 मात्रा के बाद में सम आए। बीच में एक दफा और सम आए, तो मैंने रियलाइज कर लिया ये 6:30 मात्रा बज रहा है। और मैं तिहाई लेके, और वो भी चक्करधार तिहाई लेके, पिताजी वाली, वो लेके सम पे आया। गुरु जी सोच रहे होंगे कि इसको नहीं पता लग रहा है, 3 ताल समझ के बजा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैं तिहाई लेके शुरू हो गया, उन्होंने यही सोचा होगा। और जैसे मैं सम पे आया, वो उनका वो जो बड़ी बड़ी उनकी आंखें, और शॉक शॉक देख कर तुम एकदम, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और मैं एकदम डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। आई थिंक केप्ट द सितार डाउन। और उनको डायरेक्टर साहब और हम लोग 2-1 मिनट के बाद में बात करते करते वो उठ के बाहर आ गए, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और उनको चाय वाय पिला के रुखसत कर दिया। कोई जॉब वॉब के बारे में बात नहीं की। अब इसके बाद का जो किस्सा है वो थोड़ा सा नाजुक है, इशारे में बोलता हूँ। बातचीत हो गई। दुबे जी ने कहा है कि गुरु जी ने कहा है कि कल सुबह से तुम रोज रियाज के लिए तुम्हें आना है। वो कहते ना, जब भाग्य में कभी कुछ नहीं होता है तो नहीं मिलता है। और इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था, कुछ वजहों की से वो नहीं हो पाया। आई वुड नॉट से द रीजन, बट एनीवे, एंड Guruji was quite upset about it because he wanted, to give that place which he gave it to my father, and I could not avail that due to some reasons. तो उस चीज का आज भी मुझे दुख है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस चीज का अफसोस रहेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं कहना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों भावुकता में आके मैं, आई हैड नो प्लान्स टू से दिस, बट एनीवे। और कुछ बात कर लो, और कुछ लेकिन पूछना है तो पूछ सकते हो। एक बात है, वो बहुत प्यार करते थे आपको। अरे बहुत ज्यादा, आपको, बहुत भाभी, ज्यादा। श्रुति, प्रांशु। अरे ऐसे मैं शादी हुई, तो नीता को लेके गया मैं। वहीं रहते थे गुरुजी उसी टाइम पे कि उन्होंने मुझे एक 2 रिकॉर्ड प्रेजेंट किए। नीता के हाथ में पैसे दिया, बड़े प्यार से बिठाया, चाय पानी बिठा खिलाया। तो ही वाज अ वेरी डिफरेंट सोल। और एक और इंसिडेंट देखो, बातों बातों में चीजें याद आ जाती है। मेरे को बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मैं कुछ और सोच के बैठा था और बोल कुछ और गया हूँ। उसके बाद आई थिंक इट वाज 88-89। गुरुजी वहां पे कब तक थे 95 में, कुछ याद है? 95 में 2000 तक थे। 2000 में वो सेंटर है चाणक्यपुरी ना? वाला तैयार हो गया।
वहां पे फिर बस शिफ्ट बस हो बस गए। बस 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 तो आई एम करेक्ट एकदम। मुझे यार ईयर तो याद नहीं है, मगर 89, क्योंकि 90 में मैंने अपना मकान शुरू किया था। तो इट वाज समवेयर दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू वेरी वेरी बैड पीरियड, एंड गुरुजी न्यू दैट आई एम, तो कहते रियाज व्याज कैसे चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी आजकल बहुत परेशान हूँ, तो रियाज नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक बात इतनी अच्छी कही, देखो पुराने लोग बड़े लोग कैसे कैसे, मतलब हाउ दे यूज्ड टू मोल्ड योर ब्रेन। कहते चलिए देखो, एक बात याद रखना जिंदगी में, कोई चीज नहीं करने के लिए हजारों बहाने हो जाते हैं, और कोई चीज करने के लिए कोई बहाना नहीं होता, ये बात याद रखना। और वो बात आज देखो याद आई मुझे, और याद रहती है। मैं बहुत लोगों को इस चीज के बारे में बताता भी हूँ कि, तो मैं अपने मकान के लफड़े में, फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो गार्डन स्टेट करके एक जगह है, उसके मालिक गुरुजी के पास आए। उन्होंने कहा कि हम एक फ्लैट आपको देना चाहते हैं, कि हमारे गार्डन स्टेट में गुरुजी रहते हैं, मतलब ऐसा उनके जहन में था, तो इस तरह से। एंड उन्होंने मना करा उसके लिए कि नहीं नहीं नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बच्चा है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, इसकी मदद हो सके तो उसकी मदद कर देना। एंड यू वोंट बिलीव इट, उनके ऑफिस से कोई आया मेरे घर पे, राकेश और जी थे ना, राकेश? राकेश राकेश अग्रवाल। अनूप तो सिंह, राकेश अग्रवाल। अनूप 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 आया। अनूप ने मुझे, शायद आई मेट हिम देयर ओनली, या गुरुजी की यहीं मुलाकात हुई थी। और फिर देन ही हेल्प्ड मी फाइनेंशियली टू गो फर्दर विद द प्रोजेक्ट। So that was such a big thing he did for me, for my family, for my father. क्योंकि मैं ये बेचना नहीं चाहता था, और मेरे फैमिली मेंबर्स सारे चाहते थे कि बेचे, सब अपना अपना हिस्सा ले और अपने अपने रास्ते जाए। आई वॉज ओनली म्यूजिशियन इन द फैमिली, एंड सीन दोज डेज, उसी घर में जब पार्टीज होती थी, लॉर्ड यहूदी मैन्युअल, तो पता नहीं बड़े बड़े लोग आते थे, तो यहाँ पे पार्टी होती थी, बाहर तक रिंग रोड तक गाड़ियों की कतार लग जाती थी, सारे डिप्लोमेट्स, वेस्टर बॉयज और पता नहीं कौन कौन आया करते थे। तो आई हैड दोस मेमोरीज, एंड देन माय फादर डाइड। तो वो मंजर तो कुछ अजीब ही गरीब हुआ। हिंदुस्तान में तो मौन हुआ, जर्मनी में भी कुछ लोगों ने किया। तो यू वोंट बिलीव इट, हमारे घर से लेके रिंग रोड तक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तो है ये डेफिनेटली, वहां तक लोग भरे हुए, लिटरली जैम्ड अप। तो वो सब इंसिडेंट्स मेरे जहन में थे एज ए चाइल्ड। तो मैं ये मकान को शेयर नहीं करना चाहता था, और गुरुजी का आशीर्वाद से ये चीज बची भी। हालांकि आई स्टार्टेड दैट प्रोजेक्ट, बट फाइनेंशियली एज एन आर्टिस्ट आई डिडंट हैव एनी मनी। I only had 265 rupees in my pocket when I started breaking the house. And that was the time when I met this Anup Singh at Guruji's residence, and he introduced me to them, said कि यार help him. तो वो चीजें कभी जिंदगी में भुलाई नहीं जा सकती, और उसके लिए कितना भी थैंक्स करो कम ही है। तो ऐसे महान लोग थे कि किसी के लिए मदद करने के लिए भी खड़े रहना, ये भी एक बहुत बड़ा उनके अंदर वो था। और बहुत कलाकारों को, शमीम अहमद एक सितार प्लेयर था जो गुरुजी का स्टूडेंट था बॉम्बे में, बाद में वो हो गया, उनके लिए भी गुरुजी ने बहुत किया। तो मानते थे उस चीज को मेरे सामने,
बॉम्बे का अंदर मेरा पहला प्रोग्राम था, जहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात ही केम टू सी दैट कॉन्सर्ट। तो फिर मैं उनको फोटो में कहीं देखा हुआ तो आई रिकग्नाइज हिम, तो ग्रीन रूम के साइड में वहाँ बातें हुई, तो बातें तो गुरु जी के बारे में शुरू होनी थी। प्रोग्राम चालू हो गया था और हम लोग उनके बारे में जिक्र कर रहे थे। तो कैसे कैसे समय गुजरा उनके साथ भी, एंड हाउ हेल्पफुल ही वाज। और एज अ टीचर, तो वर्ल्ड के अंदर कितने बड़े बड़े कलाकार उन्होंने बनाए जो ग्लोबली नोन है आज भी। ऐसे महान व्यक्ति थे वो, और महान कलाकार भी थे। कंपैरिजन नहीं है कोई, मतलब जिस तरह से उनका विजन था, जिस तरह से उनका सोचना था, कई आर्टिस्टों ने उस चीज को, वो अंदाज फॉलो किया एक स्तर पे आने के लिए। मुंह से तो नहीं बोलते हैं, मगर हरकतों से पता लग जाता है, क्योंकि हम लोग ने तो बचपन से देखा हुआ है सब कुछ, तो पता लग जाता है कि अच्छा, हु आर फॉलोइंग दोज वेज। सो वो सब सीखने को कलाकार के अंदर इतनी, मे बी अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन, मगर वो जो सोच थी ना उनकी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी, जो हम लोग ने, सब लोग ने सीखा उसको देख देख के, उनकी बातें सुन के। आई थिंक गौरव, you spend a lot of time with him. If I'm wrong somewhere, please stop me, हाँ। मगर ये सब चीजें थी, और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है सुन के, मतलब हम्म, देखिए I कितना। know those old days. अरे और यार, एक आप इंसिडेंट जब आते थे लोधी एस्टेट, बड़ा हम बहुत खुश होते थे। कितने मजे लेते थे। म्यूजिक रूम में बैठना। I do come- हाँ, हाँ, फिर आपका एक फिएट पर था कहते नीला हैं कि रंग का। नहीं, फिएट से पहले में मोटरसाइकिल होया करती थी मेरे पास, मोटरसाइकिल यस जी। पहले था, उसके बाद एक नीला फिएट था। नीला फिएट था, उल्टे दरवाजे वाला। वो होली के टाइम पे गुरुजी थे ना उस वक्त, जी जी जी। है ना? होली होली में आई हम रिमेम्बर लोग होली खेले थे साथ में। साथ में। बट देखो ना, वो कितने महान, ये देखो, ये भी एक बड़ी महानता थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट, सो वेल नोन जायंट, लोगों के साथ में कितना प्यार से, कभी ये महसूस नहीं कराते थे कि मैं रविशंकर हूँ और तुम देखो। वो इतना घुल मिल जाते थे, छोटों के साथ भी प्यार से। देखो, हम लोग तो बच्चे ही थे, मगर कैसे कैसे जोक्स, तो याद है जो नहीं हुआ, जोक्स तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, मगर जोवियल भी बहुत थे। और एक इंसिडेंस तुम्हें याद है कि पता नहीं किसको कहा था उन्होंने कि चलो चलो मेरी एक्टिंग करके दिखाओ, बिकॉज ही overheard somebody doing mimicry of him. Do you remember that, Gaurav? या वो शमीम जी को बोले थे, क्योंकि वो सबका शमीम नकल कौन? करते थे। तो गुरुजी ने हाँ। बोला तुम अगर सबका कर रहे हो, मेरा भी जरूर करते होगे, चलो हमको दिखाओ आज। है ना? आई रिमेम्बर दैट। तो ये देखो, ये महानता ही है ना। तो वो बेचारे घबरा गए, नहीं नहीं मैं आपकी नहीं। वो बोला हो ही नहीं सकता है, तुम जब सबकी कर रहे हो तो मेरा मेरा हो करते नहीं हो, तुम दिखाओ हमको, दिखाओ कैसे करते हो। ऐसा कुछ हुआ था ना? देन ही डिड इट ना। हाँ, उन्हें पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने उनको पकड़ा था। शमीम जी का ये था कि गुरुजी जब वापस आते थे तो शमीम जी के पास, शमीम जी बहुत जोवियल थे, मजाक करते थे, गुरुजी को अच्छा ह्यूमर में, तो गुरुजी उनके साथ बैठ के गुरुजी को अच्छा लगता था। तो गुरुजी पूछते थे अच्छा क्या हुआ लगता क्या हुआ, तो वो बताते थे सब ये हुआ, अभी देवानंद का ये पिक्चर आया है, और अभी यहाँ पे इनको है। दिखाया।
गुरुजी अच्छा, खूब, ये भी देखो खुद खुद कितना गुरुजी मजा पूरा लेते थे, सुनते थे, पूरा पूरा सुनते थे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी जानकारी सब रखते थे, सब सुनने के पॉलिटिक्स के बाद, बारे में भी। हाँ, हाँ 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा सुनने के बाद फिर गुरुजी उनको बोलते थे, उन्होंने बोला देखो यार वो बोलते भी है, मैं बताता भी हूँ, फिर सुनने के बाद हमको बोलते अच्छा ये सब तो किया, रियाज किया कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो बोले कि नहीं गुरुजी रियाज, बोले देखो ये पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ उनको, और फिर हमको बोलते हैं कि तुमने रियाज किया कि यही सब किया। यही सब किया। वो मजा लेते थे, उनका लेकिन अंदाज दिल दिल बहुत बहुत बड़ा दिल था। देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स बोलते हैं ना, बहुत देखिए बड़ा ये था, घर का बहुत मुझे बड़ा। याद आया, वो बिशन दास जी हाँ थे ना, बिशन दास जी ने मुझे हाँ 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 हाँ। मुझे एक कहानी हम्म, उन्होंने बोला था कि जब ये साउथ एक्स बन रहा था, तब तो दिल्ली जो रिंग अच्छा, रोड के उधर दिल्ली हुआ करता था, साउथ दिल्ली, डिफेंस सही बात कॉलोनी है। आके खत्म हो जाता था, डिफेंस कॉलोनी के बाहर सब वो राइट मानते है। थे दिल्ली का बाहर है, तो हाँ, डिफेंस, और हमारे घर के पीछे खेती खेती होया करते थे। जी, तो वो जब है। साउथ एक्सटेंशन बनने लगा, जिन्होंने वो डेवलप किया था, वो क्या नाम था हाँ उनका, हाँ सुंदर कुछ, बिशन दास जी नाम बताते थे उनका, वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी हाँ। के भक्त थे वो, तो अच्छा, गुरुजी को, ओके। हाँ, गुरुजी को उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एक हम बना रहे हैं, आप जगह बोलिए, आप एक अच्छा सा यहाँ बड़ा जगह आप ले लीजिए, क्योंकि वेरी दिल्ली नाइस। में आप आते अच्छा। हैं रहते हैं, आपका तो अपना कुछ है नहीं। तो गुरुजी ने तब हम्म, उन्होंने हमको, बिशन दास जी ने बोला था कि गुरुजी ने बोला नहीं नहीं मुझे क्या, मैं तो आता जाता रहता हूँ, मुझे तो वो नहीं है। हाँ, इनको उन्होंने दे दो। चतुरलाल जी के बारे में बोला कि इनके बच्चे भी छोटे हैं अभी, इनको आप यहाँ पे, तो वो जो फिर वो जो P96 जो 92 जो ओ, आपका है, वो फिर नहीं, मेरे दैट पिताजी ने लिया फिर। 96 नहीं, उसके बारे में मुझे जो अंदाजा है, मे जी, बी आई एम रॉन्ग, उमा डोगरा नहीं थी डांसर जो अपने आई बॉम्बे डोंट नो में। हु इट वाज, बट गुरुजी के पास जब आए तो गुरुजी ने फिर बोला कि आप उनके लिए, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, वो यहाँ रहते हैं, उनकी वाइफ है, ये है, मेरा तो ऐसा कोई अच्छा जरूरत है अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ फिर हाँ उन्होंने हाँ, खरीदा ओके। था फिर उनसे फिर। मे बी, हाँ, डीएलएफ वालों का ही था ये जो प्लॉटिंग किनका था काटी वो थी पता उन्होंने नहीं ही है, वो काटी था। उतना डिटेल में मुझे पता नहीं, वो बिशन दास जी ने बोला था किनका था वो मुझे, लेकिन हम्म, वो जो एक थे उनका दोस्त मोतीराम था, जी, मोतीराम ऐसे था ना कुछ उनका नाम नाम, था, ऐसे मोतीराम कुछ जी। नाम था, जी हाँ जी। ओके 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 ओके। तो अच्छा, दैट मैंने वाज कहा आल्सो देखिए कैसे इनिशिएटिव। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आपने फिर आपका जब वो, सच में मेरा हुआ तो उस वक्त भी गुरु जी का हाथ रहा, देखो। लेकिन मसला ये है कि ये सब तो है जो है, लेकिन इन लोग का दिल कितना कितना बड़ा दिल था। बड़ा था, बड़ा था। सही बात है, सही बात है। दूसरों के बारे में भी कितना सोचना। और हम लोग से पूछते थे ये वो, जब वापस हाँ आते थे पूछते थे आपके बारे में कि आप आए थे, रियाज किया तुमने, बैठा उनके हाँ। साथ, हमने कहा कि हाँ, बहुत पूछते थे वो, और बहुत प्यार करते थे ओ आपको, रियली, आई नो, बहुत प्यार करते थे। आई कैन और फिर ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ श्रुति's वर्क, एंड अंडरस्टैंड। प्रांशु जब बजाने लगा, गुरुजी अच्छा, तो, हाँ, ओके। याद है बर्थडे में हम लोग अच्छा, मिले थे लास्ट फरवरी में, यस यस यस, हाँ हाँ, ओ यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2012, यहाँ दैट पे वाज द लास्ट। चाणक्यपुर में, बिल्कुल, दैट वाज द लास्ट। कितना कितना प्यार से आपको बगल में बैठा के, आई नो, आई नो। बहुत ही, वी मिस ऑल दोज डेज, अब महसूस भी होता है, मगर वही कहते हैं ना, पछतान से क्या हो जब चिड़िया चुग गई है। नहीं हम लोगों तो ने तो देखिए यादें ही रह उनका गई। उनका संग किया, हम्म, उनका तालीम, हमको हमको थोड़ा चरणजीत हम्म, भाई आप बता सकते हैं हमको हम्म। उनका, फिर आपके पिताजी, इनके म्यूजिक के बारे में बताइए थोड़ा, कि उनके उस उनमें इतना इतना जो असर था, इतना जो, क्यों क्यों ऐसा था, इतना देखो, डेप्थ, एक सबसे इतना, पहली, इतना, ये इसके बारे में आई एम श्योर गुरुजी का बहुत हाथ होगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। मगर हाँ, मेरी मम्मी इतना जरूर कहती थी कि वो रात रात भर, उस वक्त एक छोटा सा मकान होया करता था पहाड़गंज में, वेर ही यूज्ड टू स्टे ऑन अ रेंटेड पहाड़गंज अपार्टमेंट, में। पहाड़गंज में। तो वो कहते थे अब लोग डिस्टर्ब होंगे रात को तबला बजाएंगे तो
तो एक लोहे की पेटी होया करती थी जिसके अंदर कपड़े डाल के, वो मतलब कपड़े होते ही थे उसके अंदर, उसके ऊपर बैठ के रात रात भर जो ये लगन होती है, एक तो सबसे पहले वो होनी बहुत जरूरी है। रेडियो स्टेशन, मम्मी यही कहती थी कि पता नहीं कब सोते कब थे, मुझे यही समझ नहीं आती थी, क्योंकि सुबह तक रियाज कर आके वो नाश्ता वाश्ता करके रेडियो चले जाते थे। तो रेडियो में गुरुजी होते ही थे। जब तक कुछ कोई नहीं करता था, ये एक स्टूडियो नंबर 1, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, ये उसके अंदर स्टोर होया करता था, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं। वहां पे अपनी एक जोड़ी रखी हुई थी इन्होंने तबले की, वहां बैठ के रियाज करते रहते थे। बाकी के आर्टिस्ट अपने बाहर चाय चाय, कोई चाय पी रहा है, गप्पे मार रहे हैं, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। तो गुरुजी ये चीज नोट करा करते थे, शायद तुम लोगों को कभी जिक्र किया हो उन्होंने, आई डोंट नो। तो फिर उनके साथ में इनका जब उठना बैठना शुरू हुआ, और जो साथ संगत, मैंने जैसे कहा कि ही वॉज अ ट्रेंड सेटर, एक तबला प्लेयर को संगत कैसे करनी चाहिए, और कितना मौका वो देते थे उनको प्रूव करने का कि देखो ये भी कुछ कर रहे हैं, मैं तो कर ही रहा हूं, मगर मेरे साथ जो साजिंदे हैं वो भी, मतलब टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू अ तबला प्लेयर was also, it was his day। और लेकिन गुरुजी इस ने, तरह से गुरुजी से सुना हुआ है मेरा, क्या, चरणजीत भाई, कि हाँ हाँ बोल रहा है कि गुरुजी बोलते थे कि तुम लोगों ने जो क्रेज देखा है तबले में, बोला हाँ हाँ उनके, हाँ, चतुरलाल जी का आगे कुछ नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है, हाँ। और ये गुरुजी का देखो, बोला हुआ है। और गुरुजी बोलते थे कि ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है आपसे बात हो रहा है, मजाक हो रहा है, लेकिन जब हाँ हाँ, तबले पे बैठ जाते थे वो पूरा बदल हम्म, जाता था, उनकी शक्ल ही बदल जाती थी वो यार। नूर आ जाता था। वो और ही, बोल रहे कि ही वॉज अ बॉल ऑफ फायर। क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, बोल देखो रहे ही ये वॉज अ, शब्द कितने सुंदर है। बोल गुरुजी का बता रहा हूं आपको मैं। गुरुजी बोलते थे ही वॉज अ हाँ हाँ, बॉल ऑफ फायर, लग रहा अब आग लगने वाली है। वाह वाह वाह, वो क्या शुरू हो देखो गई तो एक्सप्लेनेशन भी देखो। हाँ हाँ हाँ, बॉल ऑफ फायर शुरू हो ही गया तो फिर, गुरुजी का। और बोल रहे कि क्रेज ऐसा आप सोच नहीं सकते। क्या बात है, क्या गुरुजी बात का बोला हुआ आज के जमाने में जो भी क्रेज, जो भी है, तुम लोग देख रहे हो, बोल रहे कि कुछ नहीं है हाँ, उनका जो क्रेज था। बाप रे बाप, क्या बात है, हाँ हाँ हाँ। और वो जो सुन लेके के भी बोल रहे कितना, कि वो अब देखो तबला लेके बैठ गौरव, गए, ही वॉज हम्म, लाइक द मोस्ट हैंडसम मैन एंड अ बहुत बॉल ऑफ सही फायर। किया है, क्या क्या बात है, क्या बात है। देखो एक मेन आर्टिस्ट को, तबला प्लेयर की इस तरह से तारीफ करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन गुरुजी को इस चीज पसंद था को ना महसूस लय कर रहे हैं, लयकारी। और मैं खारी, हाँ एंड हाँ बिकॉज ऑफ हाँ, दैट सॉर्ट ऑफ अ तबला, वो बजाना भी उस लेवल का हाँ, जाता था ना। जाता था, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एंड अब उसका भी देखिए, देखो, नहीं एक बोलो एक सर, डेढ़ सॉरी। डेढ़ घंटा आलाप, उसके बाद अगर मान लीजिए झपताल हाँ, शुरू हुआ, रूपक हुआ, धमार हुआ, हम्म, अड़ा चौताल, कितने सारे हम्म, ताल, पंचम सवारी, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा क्या चल रहा था, है। चल रहा है, वाकई में आजकल तो वैसी ऑडियंस भी नहीं बैठने वाली, और सुनकार भी वैसे नहीं है, सॉरी टू से दैट। और गुरुजी तो बोलते थे दुनिया कि तो जमाना वो ही कुछ और। ट्रांसफॉर्म हो जाता था। मान लीजिए गुरुजी के साथ बैठ ये रहे हैं एक दफा और शंकरलाल फेस्टिवल ही था, हाँ अ, गुरु जी पहले कुछ कोई और थे, शायद अलीबर खान सर भी थे, आई एम श्योर। उसके बाद में गुरु जी बैठे, तो सुबह 4 बजे तक चालू है, एंड आई थिंक किशन महाराज जी वाज ऑन द तक, उनके साथ भी उनकी बड़ी अच्छी जोड़ी जमती थी। तो 4 बजे इन्होंने खत्म किया, और पब्लिक कह रही कि महाराज क्या कर रहे हो अभी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, बसें शुरू हो, जब तक तो आपको बजाना पड़ेगा। तो हंस के मजे लेते थे, शायद जानबूझ के 4 बजे बंद कर देते कि पब्लिक के अंदर वो आए। देखो ये भी एक उनके अंदर बड़ी बेहतरीन सोच थी कि कब, कहाँ पे, कितना बजाना है, और बैलेंस। क्या बजाना है।
ये भी हम लोगों ने उनसे बहुत अच्छे से समझा है, कौन सी ऑडियंस के लिए क्या करना चाहिए। गौरव, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 जी। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी देन रही है, क्योंकि जनरली आर्टिस्ट अपना सोच के आते बस ये करना है और बस इतना देर ये करना है, उतना देर करना है, बट स्टेज पे आने के बाद में वो थोड़ी सी देर में समझ जाते थे कि यहाँ पे करना क्या है। ये जो उनका एक विजन था, ये भी एक कमाल का। जनरली देख के लोगों ने, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने समझा होगा, सीखा होगा। तो ये भी एक ज्ञान ही था उनका, एक किसी बहुत बहुत प्रकार ज्यादा। देना। और एक एक और आपसे पूछना है हमको तो कि चरणजीत भाई, he was like a, institution in himself. वो एक संस्था थी जो, मतलब किसी भी चीज में, जिस चीज में उन्होंने हाथ रखा वो ऊपर जानी ही है। तो और जुगलबंदी भी, क्या 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 उन्होंने जुगलबंदी क्या हुआ। क्या नहीं शुरू किया, क्या क्या नहीं किया, वो तुम्हें याद होगा। वो बीटल्स के साथ में जो उन्होंने प्रोग्राम किया, क्या नाम था? वुडस्टॉक या कुछ ऐसा था ना। बांग्लादेश कॉन्सर्ट 50 साल, आज ये जो अभी चल रहा है, गौरव, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ये जो ईयर है, इट इज 50 I years can't of, hear you at all. you cannot hear me. Good. Can you hear me now? Can you hear me? Try without the headphones. इसमें कुछ तो नहीं होगा। Because I can hear you very well. I can hear you very well. गौरव, आपको सुनाई दे रहा है? Can you hear me? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me? You can't hear me. Let me call Navarun. अरे हाँ गौरव, थोड़ा सा Can you hear me? Can you hear me? आपकी आवाज बहुत धीमी धीमी सी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर Can सेइंग। can you try and listen without the मेरी headphone? आवाज आ रही है ना आपको? बस ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। Can you hear without the headphone? Okay, you try this. अभी देखिए, अभी सुनाई दे रहा है? Can you hear me now? हाँ, now हाँ, Pranshu has changed something somewhere else. हाँ, क्या बात है चलो, I am so glad. क्या बात है। हाँ। नहीं, मैं आपका सुन रहा था, पूरा सुना, पूरा बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप यहाँ पे एक और हमको बताइए, जुगलबंदी हाँ। जो उन्होंने किया। अलीबर खान साहब, पिताजी और गुरुजी। हाँ यार गौरव, देखो इतने बड़े लोगों के बारे में कुछ बोलना, वो जुगलबंदी की, मैं तो था नहीं उस जुगलबंदी में, ना मैंने सुना, मगर जिक्र जरूर सुना कि वो बैंगलोर की जुगलबंदी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो? जी 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 जी। वो जुगलबंदी ऐसी कमाल की हुई थी, जैसा सुनने में आता है। जी बताइए, उसको कि पूरा मैं डिटेल में बताइए आप। डिटेल में तो, कि मतलब गुरुजी वॉज इन सच अ ग्रेट फॉर्म। और एक मैं बात बताऊं, जी अभी भी आप जो कभी और भी चीजों के साथ में, जब जब ये तीन लोग इकट्ठे होते थे ना, ओ हो। तो ऐसे लगता था जैसे पूरा यूनिवर्स
इकट्ठा हो गया है। ब्रह्मा विष्णु इनका महेश। गाने बजाने का जो सोच होती थी, देखिए बहुत प्रोग्राम सुनते हैं हम लोग, और गुरुजी के भी बहुत सुने सब लोग के साथ में, मगर ये जब तीनों इकट्ठे हो जाते थे, वो एक दूसरी दुनिया होती थी। वो एक म्यूजिक का लेवल ही, वो कहते हैं ना जैसे स्वर्ग लोक का संगीत, वो उस स्टेज पे चले जाया करते थे, क्योंकि सब लोग की हृदय से मिले हुए, दिलो दिमाग उनका सारा वहीं पे हो जाता था, और एक दूसरे के अंदर इतने घुस जाते थे वो, कि उनको उनकी आत्मा, एक दूसरे की आत्मा पढ़ते थे वो, कि अब ये क्या करने वाले हैं, मेरे को क्या करना है, क्या होने वाला है। उनको आगे से आगे अपने आप ही माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद होता था। वैसा संगीत गौरव मैंने तो कभी नहीं सुना, और ना मुझे ऐसा लगता है कि कभी सुनेंगे। दूसरे आर्टिस्ट लोग सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग सकता है, मगर किसी को मैं हर्ट करने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। मगर वो जो लेवल पे वो जाते थे ये लोग, हाँ जब हाँ हाँ। ये सब जब तीनों साथ में बैठ के उस बहुत। लेवल, यार वो मतलब एक्सप्लेन करना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन वो बैंगलोर वाला मतलब इंसिडेंट बताइए हमको। वो तो बस आप सुने होगे तो यू विल योरसेल्फ विल, मतलब एक दूसरी दुनिया में अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आप भूल जाओगे आपके आसपास क्या हो रहा है, उसी के अंदर बह जाओगे। बोल रहे हैं उसमें मिलाना, साज तबला कैसे मिलता है, साज कैसे हाँ मिलाते हाँ, हैं। बोल रहे हैं वो देखो, तबले में लग रहा है आलाप हो रहा है, आए तबले में है, लग रहा है है क्या, क्या। और कितना सुर में होता था तबला। ओ, ओ। देखो, कब वो ऐसा चाट ऐसे लगती थी हाँ हाँ मिजराफ हाँ के साथ की जो सा, हाँ। ऐसा मिलन होता था, तो वहीं से वो संगीत शुरू हो जाता था गौरव। वो इतना ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट भी कम होता है, 8 घर मिला के, और टोनल क्वालिटी उनकी आहा, हाँ हाँ। इतना क्लियर। क्लैरिटी एकदम। और नादिन तो गुरुजी कितनी तारीफ करते थे। बहुत वो बहुत। जब नादिन जाते तो उनका पूरे बाल ऐसे, वो मतलब ही वॉज, जैसे वो कहते थे ना, ही वॉज अ नेचुरल शोमैन। हाँ। तो वो यहूदी मैन्यून जी ने भी कहा है इस चीज को, कि ही वॉज अ नेचुरल शोमैन। हम्म। तो वो जो आग लगती थी दुनिया के अंदर, जो गुरुजी कहते थे फायर बॉल, वो अंदर से उनका कुछ अजीब ही, एक अलग ही रूप खिलता था, जैसे वो बजाने लगते थे। और वो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि आप किसके साथ बैठे हो, हम्म। तो कितना इंस्पिरेशन आपको मिलती है। भाई देखो, दो दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, तो उनकी आत्मा अगर मिली हुई होती तो वो Union। बातचीत कुछ अलग लेवल की होती है, और अंदर कुछ है, और तुम फिर भी बैठे हुए, तो वो सोचते कि यार ये कब खत्म हो, और कब मैं जाऊं अपना काम करूं, मतलब वो वाली फीलिंग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी मिलता नहीं है, वेवलेंथ अलग होता है। एनर्जी नहीं मिलता है, वो वेवलेंथ मिलना तो दोनों को उस वेवलेंथ में आना होता है ना, तो उसी लेवल के होना भी बहुत जरूरी होता है, दैट एब्सोल्युटली। कनेक्शन, है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये चीजें अब पता नहीं, मेरे को तो कहीं दिखती नहीं ज्यादा। ठीक है, बहुत सब लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सितार, सरोद, गाना, तबला, सब बहुत बेहतरीन चल रहा है। मगर पता नहीं, हम लोग ने शायद पुराना इतना ज्यादा सुना हुआ है, यू वोंट बिलीव इट यार। वो रिकॉर्ड थे ना पुराने, गुरुजी के पिताजी के संगत के साथ में, वो कैसेट प्लेयर होया करते थे जी उस जी। जमाने में, मेरे बचपन की बात है। तो मेरे पास एक छोटा सा कैसेट प्लेयर, पता नहीं किसने मुझे दिया था, मैंने तो नहीं खरीदा था, ये मुझे अच्छे से याद है। तो वो कैसेट प्लेयर लाल रंग का था, इतना छोटा सा। वो मैं रात को लगा के कान के पास में, उसको, वो कैसेटें मेरे पास 4-5 कैसेटें थी, जिन मतलब कई सालों तक, जब तक
मतलब मैं आई यूज टू लिसन रात भर, सोते सोते बस आंख लग गई तो लग गई. दैट टाइप ऑफ क्रेज आई वाज हैविंग फॉर दीज आर्टिस्ट. तो मैंने उनको इतना, देखो जब आप इतना सुन लेते हो ना किसी चीज को, तो उनकी बारीकियां, उनकी समझ, उनका जो अंदर कैलकुलेशन क्या चल रही है, वो तुम समझने लगते हो आस्ते आस्ते. जी जी. और वो लेवल लोग पता नहीं इतना सुनते हुए है कि नहीं है. तो वो जब तक उस लेवल पे आप नहीं जाते हो, तो आप आर्टिस्ट को रीड नहीं कर सकते हो. समझ रहे हो? तो उसके बाद में मैंने किसी को, जिसको भी सुना, मेरे को अच्छा नहीं लगता था ज्यादा सुनना, तो मैं कम सुनता था. मतलब अच्छा नहीं लगता था इन द सेंस कि वो इतना जबरदस्त कानों में. अब बड़े गुलाम अली खान साहब को सुन लो, तो फिर उसके बाद में किसी को सुनने में थोड़ा सा आमिर खान साहब, वो पुराने लोग कितने बड़े बड़े होते थे. हाँ. उसके बाद में किसी का गाना अच्छा लगा, भीमसेन जोशी जी, किशोरी जी. क्या बात. क्या है यार, कुमार क्या? कुमार गंधर्व जी. जी 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 जी. क्या तो बात है. अब वो यार इतना सुना है, मलिक अर्जुन मंसूर. हाँ. अब बहरे वहीद खान साहब और उन लोग पुराने बुजुर्गों को तो हमने ज्यादा सुना नहीं उस जमाने में. देखो आज की डेट में आप सुन सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या डाल रहे हैं लोग. बट हमारे बचपन में तो ये सब नहीं था. नहीं था जी. तो यही लोग थे जी. जिनको हम लोग सुनते थे. तो वो ही कंपैरिजन उस दिमाग से करता हूँ. तो और कह भी देता हूँ, ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो क्या कर सकते नहीं, हैं. आप सच बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोल सच ही रहे हैं. बोलना चाहिए यार. देख, और सच बोलना चाहिए. और क्या. और वन क्या. शुड बी ट्रू. एंड व्हेन Absolutely. यू आर योरसेल्फ एन आर्टिस्ट, सच्चाई बोलने में क्या जाता है. और क्या. और क्या. एकदम वन शुड एकदम. स्पीक Absolutely. Thank you ट्रूथफुली. very much, इट Charanjit वाज भाई. रियली बहुत नाइस. एंड बहुत अच्छा लगा. गौरव, आई फील सो ऑनर्ड दैट मुझे, मतलब आई एम अ, वो कहते हैं ना, एक ड्रॉप इन द You are ओशन. an important part of our family, of Guruji's मगर आई family. फील सो गुड speaking all And those. Guruji, along I with your I father, hope I have not said something wrong, but if you I have have said it said, I'm beautifully. sorry to everybody. Everything you have said beautifully. Beautifully you चलो. have said. And you are an important part of Guruji's family. Of And course, of course, of course, I your am. father being the Hmm. first person with whom Hmm. Guruji took this बिल्कुल music to बिल्कुल the rest of the world. And बिल्कुल. we are really proud and happy with you, with Shruti and Pranshu. And it's wonderful. It's going in the right direction. आपको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम थैंक करते यू सो हैं. मच. And मुझे भी बहुत अच्छा लगा टू बी पार्ट ऑफ दिस. I look एंड forward to seeing you soon. And आप अपना ख्याल रखिए. ऑफ कोर्स, Take care of थैंक यू, yourself. सेम टू यू. थैंक यू, थैंक यू. Thank नमस्कार. नमस्कार नमस्कार अंकल, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार. Thank you थैंक so यू. much. Thank you थैंक so यू. much. Good night. गुड Good night. नाइट. Gaurav, take care of yourself. And to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, do join us this Thursday, 30th October. We are starting our second season of Musicurum Next Gen. So do join us on Thursday at 8 p.m., 30th October, to see the online concert of the young generation, Musicurum Next Gen. Good night and stay safe.